Hello pre-9th, today we will learn chemistry, chapter 1, lecture 3. Well, if I talk about the last lecture, in last lecture we have discussed the first three branches, physical chemistry and organic and inorganic chemistry. Well, now we have the fourth one, biochemistry. Well, what we have here, biochemistry. Well, if we're talking about the biochemistry, the definition here is it is the branch of chemistry in which we study the structure, composition, and the chemical reactions of substances found in living organisms. Is called what? Is called biochemistry. Clear? It is the relation between chemistry and bio. Well, we have here in our body system, in digestive system, in breathing system, in all the systems, especially in metabolism, catabolism, anabolism, we deals with the we deal with chemistry in a body as well. Clear? All the reaction taking place in cells is pertaining to chemistry. Well, अगर बेटा हम इसकी बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो ये क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जिंदा जानदार जो चीज़ें हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ना, किसी केमिकल को, उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, तो उसका जो ताल्लुक है किसके साथ है? दैट बिलोंग्स टू बायोकेमिस्ट्री। है? Well, it covers all chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats. अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोकेमिस्ट्री के ही अंदर डील की जाती है। मेटाबॉलिज्म का आपको पता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल इज कॉल्ड कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड फैट्स, दीज ऑल आर pertaining to बायोकेमिस्ट्री। सच एज आगे अगर फर्दर हम देखें ना इसको, बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food, or how the fundamental biological changes occur during a disease। और एक सेहतमंद इंसान का जो प्रोसेस होता है वो कुछ और होता है। एक जो बीमार आदमी होता है उसका जो जिस्म का जो कंपोजिशन या उसके जिस्म की जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? और उसके जिस्म के अंदर जो ब्लड कंपोजिशन है उसको फ़र्क पड़ता है, और जो फ्लूइड है उसको फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अब इसका जो अतलाक है, जो इसका यूज़ है ना, वो कहाँ कहाँ पे? एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये इसका बेटा यूज़ है। कहाँ कहाँ यूज़ है इसका? इसका यूज़ है बेटा मेडिसिन में, मेडिसिन एंड फूड साइंस, फूड में भी यूज़ होती है ये। क्लियर? और एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ होती है। क्लियर? अब उसके बाद बेटा बात करते हैं, हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से बेटा शो हो रहा है कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। क्लियर? तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इसको डिस्कस करते हैं। What we have here, industrial chemistry. Well, the branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. I repeat it, the
branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. Well, बेटा केमिकल कंपाउंड्स का इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार करना, तजारती पैमाने पर तैयार करना, यानी लार्ज क्वांटिटी इन बल्क मटीरियल व्हेन वी मैन्युफैक्चर केमिकल कंपाउंड्स इन लार्ज क्वांटिटी. Well, this branch pertaining to, or this branch is relevant to industrial chemistry. Well, it deals with the manufacturing of basic chemicals such as oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, and sulfuric acid. Clear? These chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizers, soap, textiles, agriculture products, paints, and paper, etc. Clear? अब ये जितनी भी चीज़ें ना, all the things mentioned here, these all are relevant to, these all are dear the industrial chemistry. अब इस सब की जो पीछे जो वजह है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है. वेल, इसका यूज़ अभी मेंशन किया गया यहाँ पे, मेंशन है. तो केमिकल बनाने में काम आती है. अब केमिकल कौन से हो सकते हैं? जैसे कास्टिक सोडा बनता है, कुछ ये जो ऑक्सीजन बनती है, क्लोरीन बनती है, अमोनिया बनती है, आर्टिफिशियली जो ऑक्सीजन और क्लोरीन बनती है, कास्टिक सोडा बनाया जाता है. तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही ये बनते हैं. फिर उसके बाद है नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी इंडस्ट्रीज़ में ही बनते हैं. दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटीरियल्स फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स. कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स, और कहाँ पे सोप, और बेटा ये यूज़ होता है टेक्सटाइल्स में. टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, क्लियर. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो दवाइयाँ बनती हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. वी टॉक अबाउट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर relevant to agriculture products. Right? Well, now let's talk about paints and paper. अगर मैं पेंट और पेपर की बात करूँ ना बेटा, तो पेंट बनाने के लिए भी पेंट जहाँ पे बनते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है. और ये भी इंडस्ट्री का इसके साथ ताल्लुक है, पेपर का भी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक है. क्लियर. उसके बाद बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है. अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, ये जो बनाते हैं, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, ठीक है. इसमें ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी डिस्कस किया जाता है. क्लियर. इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़. ये जो है न्यूक्लियर प्रोसेस और रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं उसको डील करते हैं. और इसका ताल्लुक बेटा हमारी जो एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी का जो शोबा है उसके साथ इसका ताल्लुक है. क्लियर. होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी. नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.